इवन इन योर केस ऑल्सो, अगर आपको आपका करियर टॉप पे लेके जाना है तो विजिबिलिटी भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, अपना खुद का प्रमोशन करना भी ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज एवरीवन टू just create the LinkedIn account. In case if you're not there, just create your Twitter account, do the particular activities professionally which will help you to boost your career prospects. Follow those companies and organizations which you feel that are your dream organizations. Now talking about the syllabus, yesterday we did not discuss about it. This fourth chapter covers your promotion, the basic meaning, the definitions, roles of marketing mix, the marketing communication mix, especially the elements the in the particular marketing communication, that is advertisement, sales promotion, personal selling, public relations, direct marketing. Then concept of IMC, which is called as integrated marketing communication. We will understand how to develop the effective communication, the communication process, the steps in developing the effective marketing communication, how to identify the target audience, determination and communication objective, determining the communication objectives, designing a message, choosing a media, selecting a message source, collecting feedback. These are the stages in the process for developing the effective marketing communication. Then shaping the overall promotion mix. Here we will understand what is promotion mix strategy and what are the pull versus push strategies. So this is the content for unit 4. Yesterday I gave you the overview regarding what is promotion. Very few people would believe that without promotion the organization can survive. Otherwise, almost everyone has a common opinion and a strong belief that the company has to constantly involved in the promotion for its branding, for segmentation, targeting and positioning, for understanding the consumer markets better, for collecting the feedback from them and to adjust to the marketing environmental changes. So promotion is a very important tool. Now, when we talk about promotion, promotion today is being integrated. It means it is across various platforms. Gone are those days wherein the platforms were only limited to print media and television channels. Today, you have a number of options. You have websites, you have blogs, you have articles, you have the viral videos, YouTube, social media, everywhere. You can actually do the publicity and promotion of your brand. The ultimate goal is to attract the potential customers. You all know that without attracting the potential customers, it will not be possible for you to appeal them. Naukri.com, for example, it's a job portal. Every Wednesday, the advertisement of Naukri.com can be seen in Times Ascent. That Times Ascent is only for the people, those who are looking for some particular job changes, or they are those who are looking for the fresh jobs. So here you will find the Times Ascent news or some particular article or probably the advertisement. The same is the case with the other brands, like for example the famous FMCG brand of India, Amul. Every day you will see the advertisement of Amul in the newspaper. They are consistently maintaining that creativity and innovativeness in their advertisement. Whatever is the current trend, based on that they make the jingles and then the jingle becomes very popular. Also, these are some of the examples how the brands are constantly engaging the customers through the promotion. As I say, for the promotion, there are a lot of tools, like for example, advertisement, sales promotion, personal selling, direct marketing, email marketing, telemarketing. These are all the tools which are being used by the organizations to promote their product or the offerings to the customers. Is it clear to all? Yes, sir. Okay, Yes. just give me a moment. I am getting a call. Okay, so marketing में बोला जाता है, unless your campaign has a big idea, it will pass like a ship in the night. नाइट में अगर एक शिप निकलती है तो उसके लिए कितनी दिक्कतें होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं. सो आपकी जो भी मार्केटिंग कैंपेन है उसके पास उसका एक बिग आइडिया होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डेविड ऑगिबली. और आप लोगों को पता होगा डेविड ऑगिबली ये जो है पूरी दुनिया में
एडवर्टीजमेंट्स की दुनिया के ये बादशाह हैं। जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं न्यूज पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट का जो शेयर है वो ऑगिवली के पास में जाता है। नाउ बोला जाता है हाफ द मनी आई स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स is wasted and the problem is I do not know which half. That was the statement which was given by the British founder of Unilever, and he was the great philanthropist. His name was Lord Leverhulme. So people understand the importance of promotion. When we talk about promotion, it is today an integrated marketing communication mix strategy. Integrated marketing communication deals with the fourth P of marketing, that is the promotion. And promotion is the coordination of all the efforts the company undertakes to make the consumers aware and persuade the consumers for buying the products and the services. Now, when the product is developed in accordance with the needs of the customers, it needs to be priced attractively, and then it needs to be available at the point of purchase. But the customer will ask about your product in the market only when he or she is aware about it. So awareness create करना बहुत जरूरी है. Again, awareness or communication to the customer is not everything. It should be in such a way that the customer chooses your product over the competitor's product. So the promotion is been termed as the communication by Mr. Robert Lauterborn from the perspective of the consumer. Earlier, it was known only as the marketing communication, as the media vehicles were very few and doing promotion was simpler before 1980s. Now, with the growing complexity in the market and in the technology, a company needs to integrate all their marketing communication activities to get the maximum reach to the target audience with minimum resources, and that is why it is called as integrated marketing communication by now. Is it clear to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So every brand has their promotional strategy. Some brands specifically chooses their particular specific medium. Like for example, Naukri.com, their tagline is number one, India's number one job site. Okay, Garnier, अपना ख्याल रखना. ये इस तरीके से हमारा बजाज, ये बोले मेरे चिप्स अंकल चिप्स, ये बोले मेरे लिप्स अंकल चिप्स, ये सारी चीजें जो है जिंगल्स और ये प्रमोशनल टेक्निक्स, जैसे एयरटेल की ट्यून है, नोकिया की एक सिग्नेचर ट्यून है, ये सब क्यों किया जाता है? जिससे कि लोग अपने सारे सेंसेस को यूज करके भी ब्रांड को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या प्रिफर कर सकते हैं. किसी भीड़ में भी अगर किसी का रेडमी का फोन बजता है और अगर आपने उसको यूज किया है तो आपको पता चल जाएगा इसके पास में भी रेडमी है, अगर उसने वो सिग्नेचर ट्यून लगा के रखी होगी. सो ये भी एक प्रमोशनल टूल है, राइट? हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, कलर मार्क होता है, और ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं ये सब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं. कंपनीज का एक मेन पर्सपेक्टिव ये होता है कि लोगों को अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में एक ऐसी पोजीशनिंग क्रिएट करना कि वो कॉम्पिटिटर से पहले हमारे ब्रांड को प्रेफर करें, राइट? जी टीवी का फॉर एग्जांपल टैगलाइन है उम्मीद से सजे जिंदगी, और उसमें उन लोगों ने कुछ 4 लाइनें भी लिखी थी. उम्मीद के बंद लिफाफे में एक टिमटिमाता सपना है, बादल की पिचकारी लेकर चांद सितारे रंगा है, आसमान की इस किताब पर नाम बस अपना लिखा है, जी टीवी. तो ये जी टीवी का टैगलाइन था, राइट? हो सकता है शायद आप लोगों को याद हो या ना याद हो. मारुति ने जब एल्टो लॉन्च की थी तो एल्टो का टैगलाइन था लेट्स गो, और उसके बाद उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया था, इंडिया हैज अ न्यू फेवरेट, द ऑल न्यू एल्टो 800 बुक नाउ. ये उनकी वेबसाइट में उनकी डिटेल्स अवेलेबल थी. जिलेट कंपनी वो क्या करता है? जिलेट कंपनी अपने साथ में वो दिखाता है कि एक फेरारी गाड़ी खड़ी हुई है और उसके बाजू में लेविस हैमिल्टन, ये जो काफी टाइम F1 फार्मूला रेस के विनर रह चुके हैं और पोल पोजीशन पे हमेशा रहते हैं, ये लेविस हैमिल्टन की फोटो के साथ में और बाजू में उनकी फेरारी खड़ी हुई है, उसके साथ में जिलेट अपना एडवर्टीजमेंट दे रहा है. मतलब क्या? फास्ट शेव इन क्विकर टाइम, राइट? तो ऐसे अगर आप जाएंगे किसी भी जगह पे आप देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करने के लिए कंपनीज अलग अलग चीजें करती हैं, राइट? अभी ओवरऑल क्या है? लोगों को एक धागे से बांधना, लोगों को बताना कि
हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपके लिए हैं। रिलैक्सो हवाई चप्पल, उसका उसका जो टैगलाइन था वो था सही में मजबूत, और उसके नीचे था क्वालिटी फॉर एक्सीलेंस। हवाई कंपनी का है रिलैक्सो, राइट। उसके बाद लार्सन एंड टर्बो ने अपना एडवर्टीजमेंट दिया था, वी बिल्ड द एयरपोर्ट्स एंड यू टच द स्काई। समझ रहे हैं? तो इसके पीछे काफी कुछ उनकी ब्रांड्स की एक स्ट्रेटेजी होती है। डीडी मास ज्वेलरीज, जो प्लैटिनम और डायमंड ज्वेलरी के लिए जाने जाते हैं, उनका टैगलाइन है डेजल द वर्ल्ड। ये सारे टैगलाइंस, डेटॉल, डेटॉल का टैगलाइन क्या है? डेटॉल हेल्दी किचन जेल, उसमें वो जो आया था उसमें, और उसका टैगलाइन है क्लीन फॉर रियल। ये सब जो चीजें हैं, ये मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चले कि प्रमोशन करने के लिए कंपनी क्या क्या करती हैं। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज के एडवर्टीजमेंट आते हैं, और जैसे कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, फोन का, या अभी रिसेंटली शॉपिंग चल रही है इस पे अमेजोन पे, आज और कल, मतलब कल और आज 2 ही दिन की थी, आज लास्ट डे है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि 10% इंस्टेंट कैशबैक फ्रॉम एचडीएफसी, और पावर्ड बाय अमेजोन पे, और उसके बाजू में लिखा है 0% डाउन पेमेंट पर इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस। ये सब क्यों करते हैं कंपनीज? ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तनिष्क कंपनी ने, तनिष्क ब्रांड ने अक्षय तृतीया के टाइम पे उन्होंने फ्री गोल्ड कॉइन ऑफर डाला था। पता नहीं आपको ये चीज मालूम होगी कि नहीं। फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी ज्वेलरी परचेज, मतलब अगर आपने तनिष्क से ज्वेलरी परचेज की होगी उस टाइम पे, तो आपको वो मिलेगा। बिग बाजार कंपनी पब्लिक हॉलिडे सेल निकालता है हर साल, 1 मई से 4 मई के बीच में, राइट। उसके बाद कॉटन काउंटी करके एक है, उनका भी एक बाहुबली ऑफर आता है, या बैसाखी ऑफर आता है, वो हर साल वो लोग देते हैं। पैनासोनिक कंपनी, उनका टैगलाइन है सेंसेस सेल्फ एडजस्ट सेव्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये प्रमोशन के अंडर में कंपनीज यूज करती, ताकि लोग ब्रांड को उसकी जिंगल से, उसके लोगो से, उसके कलर से, उसका टैगलाइन से, उसका ब्रांड का जो पर्पस है उससे समझ जाएं। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, now let us understand the role of marketing communication in marketing efforts. We have already discussed about it yesterday, that marketing communication is a way by which the firms attempt to inform, persuade, and remind the consumers about the products and services and the brands they sell. With the help of the marketing communication, the firms can establish a dialogue with the customers and build the relations. Marketing communication helps in educating the consumers on how the product works, its features, and what brands stands for. It helps to make the customers aware about the products and the brands. So as I said, marketing communication is very important tool for creating awareness, for connecting with the customers, for informing them about the product, service, features, and everything. Okay, so these are the roles of marketing communication. Additionally, marketing communication persuades the customers for the trials. I gave you the example yesterday for the luxury automobile vehicles. Then I gave you the example of the apparel brands. They induce the trial by keeping the particular samples in the hangars where the customer can come and they can try for it. Then marketing communication allows the companies to link their product with other people and the brands. Yes, many brands, like for example, Nike, they always show their advertisement along with the photographs of the athletes. They never show the particular photographs of their particular Nike shoe brands or the Nike range available across all the sports category. Never. They just show the swoosh, that is the logo's name, and this shoes along with the photograph of the athlete comes in the newspaper, print media, electronic media as an advertisement. That is their campaign which they are running. It means that they want to connect with the athletes, because athletes, sports people, they take on the challenges, they work hard, and that is the image which the company wants to portray. Now, as I said, promotion also helps in brand building. For example, Yeble Chai, they have become very popular in Maharashtra, just not just because of the quality of the tea, but also by doing the promotion, that it was started by the farmer family. Today they are millionaires. They had the chains, especially in the rural India, rural Maharashtra.
Sorry, there was a technical issue. I got disconnected for a while. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Friends, I just want to tell you that today I'll be giving you a written home assignment on marketing management. This will be the concurrent evaluation 2 for the course. So I request everyone to kindly solve the assignment in the stipulated time which has been given, which would be given by me at the time of sharing the assignment to you, and submit the scanned copy through email. While you are writing email, please do mention your name, your roll number, and the subject name along with the particular subject of the email. This will help me to identify the email of yours, because your assignments are coming on the single particular email. It is very difficult to identify which particular email belongs to which particular faculty. Do mention your name, roll number, the subject name, so that I can retrieve and get your particular file and will keep it in my records for the assessment purpose. Now, as I said, brand building, image building. Apple company, they have very straightforward strategy. If you go to the office of Apple in United States, you will find that the entire office is in white color. Even their desktops are also in white colors. Employees are also wearing the white uniform. And at the same time, if you see the case or the particular packaging of Apple phones, it is also in white. That is one kind of promotional strategy. They wanted to keep it very simple. They never wanted to make it like a rainbow. Otherwise, they would have made multiple colors packaging. They did not do that. So, brand building, image building will leads to creation of the brand equity. People prefer the brand if it is having the simplicity, it is sophisticated, at the same time it is being able to serve all the expectations of the customers. Now, talking about the communication mix elements, these are the elements which are being called as the marketing communication mix elements. These are events and experiences. For example, global sporting events like Olympic, T20, World Cups. They are the events wherein the marketers they sponsor their products. The football cups. All these are the examples. Then experiences includes the amusement parks like Disneyland, Nintendo Land. Then you have AdLabs Imagica, Sentosa Water Resort, etc., etc. So here the marketers they do the promotion of their products. Then public relations and publicity. Public relations means in every service organization today you will find that there is a person called as PRO. Just give me a minute. I'm getting a call from the office. Okay. आपको पता है जब धोनी जब नए नए आए थे तो उनको कोई भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलते नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके वो पॉपुलर हो गए उनके लंबे बालों की वजह से। और उसके बाद धोनी एक स्टाइलिश एक आइकॉन बन गए यूथ के लिए खासकर, और काफ़ी सारे Yes, यूथ sir. उनको फॉलो करने लग गए। धीरे धीरे धोनी हर जगह पे दिखने लग गए। धोनी का एड आपको सीमेंट कंपनी से लेके आपको जो भी पेंट कंपनी है उसमें, उसके अलावा बाकी बाइक उसके केस में, टीवीएस बाइक के केस में। तो ये जो होता है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपकी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं। आप जैसे अपनी ब्रांडिंग करेंगे उस हिसाब से आपको पब्लिसिटी, उस हिसाब से आपको मार्केटिंग एफर्ट्स लगाने के बाद जो कुछ भी करियर में ग्रोथ होगी वो होती है। तो उसमें क्या है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से अपना प्रमोशन बार बार नहीं कर सकती, हर कस्टमर को कनेक्ट नहीं कर सकती, तो वो क्या करते हैं, एक पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर रखते हैं। इस ऑफिसर का काम क्या होता है, लोगों को कनेक्ट करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुनना कस्टमर्स को, और उसके बाद उनको प्रॉपर सॉल्यूशन देना, नहीं तो प्रॉपर पर्सन से कनेक्ट करवाना। फॉर एग्जांपल टुडे इफ आई कॉल माय बैंक, I will get my public relationship officer online. This public relationship officer will help me to sort out my particular problems or the issues.
suppose one day I just the other day I called the bank where I have my account. The public relationship officer had already called and given me his number, that is the landline number, which I was supposed to call during the office hours. I called on that number. I wanted to check the locker facility in the bank. So he just helped me in connecting with the concerned department, those who are dealing with the lockers. Before that, I called the particular bank to understand if I could open my Demat account, what are the charges. So this public relationship officer, that time it was a different one. That public relationship officer helped me to connect with the Demat department. So public relationships are very important. Organizations can grow if they can help the company to connect with the customers. These are called as the touch points, where there is a possibility that the customer will engage with you. Suppose there is a prospective customer who wants to know about your brand, about your organization, and if the customer or the prospective customer does not get any information or any satisfactory information about the company, what will happen? The person will turn dissatisfied and probably will never come back. So the companies keep the public relations department, especially to deal with the customers across the regions, across the markets. Their job is to retain the customers and to create new ones. And through that, they are doing the publicity. They will tell कि आपके बाजू में ही वो हैं, वो हमारे कस्टमर हैं, आप उनसे हमारा फीडबैक ले सकते हैं. जब कंपनी इतना कॉन्फिडेंटली बोलती है या कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको इतना कॉन्फिडेंटली कुछ बोलता है तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होता है. डायरेक्ट मार्केटिंग में द कंपनी सेल्स देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, and here there are no middlemen which are been involved. Only the company's representatives are there which are selling the products to the customers, either for the purpose of resale or for the purpose of final consumption. Interactive marketing generally happens with the form of some chatbots. AI powered chatbots are there. For example, today if you want to order a meal on Swiggy or on Zomato, if you have any difficulty in identifying the particular restaurants in your area, they have the chatbots. Alexa, for example, they are engaging the customers. Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant, they are the examples. So through them, the companies, they do the interactive marketing. And social medias are also being used for the purpose of interactive marketing, wherein the emails, social platforms, the particular information about the company, they keep on posting. The particular customers, those who like or the follow the particular company's logo or the company's particular channel, they are being provided with the latest information about the company. Through this, the company keeps their customers, the prospective customers, updated. Word of mouth marketing means anyone who has purchased the product and is highly satisfied, the customer will become the advocate for the brand and will recommend the product to others. So word of mouth marketing is also coming up very strongly these days. Companies know that if they only give the advertisements, the customers will never trust more. So for that purpose, they want the people, those who have already used the product or the service and are satisfied with that, with the help of which the company can create the demand and increase the sales. In case of toothpaste advertisements, you have seen the doctor is prescribing the particular patient or the person the toothpaste Sensodyne for the gum related problems. Then you have seen in case of lot of other advertisement wherein people say that I am the customer for this particular product, whether it is a Maggie, whether it is a cement, or whether it is XYZ brand. Today the companies more rely on such customers, those who are ready to share their story on a big platform, because that does the positive word of mouth publicity for the company. So if, for example, Chitle Sweets have to do the advertisements, they will first of all try to identify who are their loyal customers. If the loyal customers give any testimony in front of the camera, that testimony will be very much appreciated, reliable and authentic as compared to the advertisement given by the Chitle Sweets. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसलिए रेटिंग्स को अभी बहुत, ये रिव्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस आ गया है ऑनलाइन की. Yes, that is a part of interactive marketing. TRP जिस चैनल की ज़्यादा होती है, उस चैनल में एडवर्टीजमेंट देने का पैसा उतना ही उस टाइम पे, उस टाइम स्लॉट में सबसे ज़्यादा होता है, प्राइम टाइम पे, राइट.
तो अभी देखेंगे तो सोनी लिव ऐप का सबसे ज्यादा चल रहा है बिकॉज ओलंपिक गेम्स उसी में चल रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि जापान ने जो मेडल्स जो बांट रहे हैं टू ऑलमोस्ट 5,000 एथलीट्स को जो दिए जाएंगे मेडल्स, ये मेडल्स रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से बनाए गए। ओके, उसके बाद जापानीज जितने भी इसमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिसाइकल्ड जो भी वेस्ट है उससे उनकी ड्रेस बनाई गई है। और बहुत सारी चीजें हैं जापान के बारे में जो जापान ने दुनिया को दिखा दिया कि हम ओलंपिक तो कर रहे हैं बट हम किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए और बाकी एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये भी एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कई तरीकों से की जा सकती है। एक तो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज अगर आपकी कंपनी के बारे में अच्छा बोले तो कंपनी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर कॉलेज के बारे में अच्छा बोलते हैं तो कॉलेज को अपना एडवर्टीजमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास स्टूडेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। आपने देखा होगा तो ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कॉस्मेटिक ब्रांड्स, उसके बाद आपके इंश्योरेंस, इसमें एक एजेंट होता है आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको प्रोडक्ट ऑफर करता है। बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द इंश्योरेंस आर डिफरेंट। So personal selling happens in those cases wherein some representative or the channel members, they sell the product to you. That is just based on your individual requirement. So customized आपको solutions देना। Personal selling आपने देखा होगा बायजूस थ्रू Whitehead Junior, they are offering the coding classes from the age of 6 up to 11. Now when you say from the age of 6 up to 11, here the Byju's is providing the personal counseling to every student. It means they have a personal touch with every student rather than just keeping the videos on the platform for the students to watch. They are also keeping a personal touch. In case if the student is having any difficulty, they are conducting the free counseling sessions for them if you are the member for that particular course. So this is a kind of personal selling approach. Now, companies, organizations, the individuals, they also want sometimes the personal selling. They don't want to give the advertisement on the public domain. They want the company to approach them, identify their requirements, and based on that they can modify the things, out customize the things for them. पर्सनल सेलिंग आपका सबसे कॉमन है बैंक्स में। आपको बैंक में रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है, किसी को सेविंग अकाउंट, किसी को करंट अकाउंट, किसी को फिक्स्ड डिपॉजिट, किसी को गोल्ड खरीदना है, किसी को म्यूचुअल फंड, किसी को डीमैट, किसी को इंश्योरेंस, राइट, किसी को लोन लेना है। देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द बैंक। किसी को वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट लेना है, किसी को वहाँ से एक बैंक में जॉब लेना है। तो बैंक में जॉब जो है ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, बट बाकी सारे जो हैं वो कंपनी एक बैंक के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स जब डिफरेंट हैं तो हर किसी को एक जैसे प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते क्योंकि ये सब्जी नहीं है। यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन होना जरूरी है। किसी को राइडर्स चाहिए, किसी को विदाउट राइडर इंश्योरेंस चाहिए, राइट, किसी को डीमैट अकाउंट में प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए, किसी को नहीं चाहिए क्योंकि वो इतना ट्रेडिंग नहीं करना चाहता। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट्स। Advertisements are basically any paid form of non-personal communication through any media which has an identified sponsor. Paid form of non-personal communication through any media having an identified sponsor is the definition of advertisement. It can be through print media or electronic media. Sales promotion means offering discounts, offers at the time when the sales are low so as to create the sales during that period and increase the revenues of the organization. Sales promotion includes discounts, offer, cashback, coupons, loyalty card, etc., etc. So these are the marketing mix elements which are being used for communication to the target customers. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now, as I explained you about what is advertisement, we will run through the slides quickly now because I have already explained all the points. So advertisement is any paid form of non-personal communication and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor via the print media, newspaper or magazines, broadcast media that is TV and radio, and network media that is telephone, cable, satellite, wireless, etc.
Then electronic media, that is the web pages, and display media, which includes the billboards, signboards, posters, cutouts, banners, danglers, and so on. Then advertisements can build a long-term image of a product, and it could trigger a quick sales. Any new product being launched in the market comes to the market just after the advertisements only. अगर किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किए बगैर आपने उसको मार्केट में उतार दिया तो वो प्रोडक्ट को लोग जानेंगे ही नहीं, जब जानेंगे ही नहीं तो खरीदेगा कौन? सो एडवर्टीजमेंट follows the particular launching of the product. नाउ वाइडर रीच क्या होता है? एडवर्टीजमेंट की वाइडर रीच होती है, आप जिनके पास जा नहीं सकते उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं. आज एडवर्टीजमेंट के लिए आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं. यू कैन क्रिएट अ फेसबुक पेज, थ्रू दैट यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर ब्रांड और द सर्विसेज और द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. सो एडवर्टीजमेंट, क्विकर में आपने एक ऐड दे दिया, आपको आपकी गाड़ी सेल करनी है. अब कस्टमर कहीं पर भी होगा, अगर उसको इस रीजन में है, इस लोकेशन में कन्वीनियंट है, वो आपको कांटेक्ट करेगा. तो एडवर्टीजमेंट की एक बहुत वाइडर रीच होती है, पर देन इट हैज द परवेसिवनेस क्वालिटी. एडवर्टीजमेंट परमिट्स द सेलर टू रिपीट अ मैसेज मैनी टाइम्स. आपके दिमाग में एक जगह बना देता है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, राइट? ये जो चीजें हैं, तेज द थंडर, थम्स अप, ये एग्जाम्पल्स हैं कि एक ही मैसेज को जब कंटिन्यूसली रिपीट किया जाता है तो वो लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन. और उसके बाद जब भी कभी वो कस्टमर मार्केट में जाता है और अगर उसको वो प्रोडक्ट चाहिए रहता है उस कैटेगरी में, तो वो उसको प्रेफर करता है. मार्केट में क्या चल रहा है? लोग बोलते हैं फॉग चल रहा है. अब लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन आ गया, फॉग. तो होता क्या है, जब कस्टमर मार्केट में जाता है उसको 50 डीओ दिखते हैं, तो उसके नज़रों के सामने जो पहले पड़ेगा वो जनरली उसको वही लेना है. लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार एक बार फॉग का देखते हैं, फॉग का बहुत एडवर्टीजमेंट देख रहा है. सो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू पॉसिबल है. द बायर हैज द ऑप्शन टू रिसीव एंड कंपेयर द मैसेजेस ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटर्स. अभी फ्लिपकार्ट की भी सेल चालू हो गई. अभी बायर कंपेयर कर रहे हैं कि अमेजन की सेल में ये प्रोडक्ट कितने का है और फ्लिपकार्ट पे कितने का है. एम्पलीफाइड एक्सप्रेसिवनेस, द कंपनी कैन क्रिएट द इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स बाय यूजिंग द स्टोरीज, प्रिंट, साउंड एंड कलर. आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था किस तरीके से मैगी स्टोरीज को यूज करता है. प्रिंट में कैसे कलर कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं. साउंड में मैंने आपको बताया रेडमी का सिग्नेचर टोन, एप्पल का सिग्नेचर टोन, उसके बाद एयरटेल का सिग्नेचर टोन, नोकिया फोन का सिग्नेचर टोन, राइट? जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट का एक स्मेल होती है, एक पिक्यूलियर सी स्मेल है. आपकी आंखें बंद भी कर दी जाएं, आप जॉनसन एंड जॉनसन के भी प्रोडक्ट को अगर आपने यूज किया है तो आप पहचान सकते हैं. कंट्रोल, द कंपनी हैज द बेटर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट्स एंड द मैसेजेस टू बी कम्युनिकेटेड. कंपनी को पता है कि उसको किस टाइम पे किस प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करना है, मैसेज किस प्रोडक्ट के बारे में डालना है. Then cost incurred. Advertisement in the form of TV commercials incur high cost as compared to the newspaper advertisements. Better advertised brands considered to be of good value. आपको पता है कि जरूरी नहीं कि जिसने जिसने एडवर्टीजमेंट देखा कमर्शियल ब्रेक में हर कोई उसका कस्टमर हो. एक ही एडवर्टीजमेंट को घर के बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं. हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होंगे, राइट? एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे. उस केस में आपने देखा कि एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज वाइडर रीच होने के बाद में भी एक्चुअल टारगेटेड कस्टमर बहुत कम होते हैं. एंड दैट इज वाई यू हैव अदर टूल्स फॉर द मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So as I explained, the limitations of advertisement is प्रोडक्शन में टाइम लगता है एंड प्लेसमेंट्स. आपको ये बहुत केयरफुल होने की जरूरत है. अगर आपने रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे अगर प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया तो प्रोडक्ट आपका चलेगा नहीं. तो आपको प्लेसमेंट प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा ब्रांड इमेज से कि आपके ब्रांड की क्या इमेज है. सस्ते प्रोडक्ट को कमर्शियल ब्रेक्स में लगा दो, दिखा दो. बट अगर आप एक लग्जरी प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, उसको नॉर्मल कमर्शियल ब्रेक में दिखाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन होगी. आपको उस हिसाब से देखना है. लो रिलेटिव कॉस्ट इसकी क्यों होती है? क्योंकि जब वाइडर रीच होता है तो पर यूनिट कॉस्ट इसकी एडवर्टीजमेंट की कम हो जाती है. सो एडवर्टीजमेंट की ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल, मतलब एडवर्टीजमेंट छापने वाली कंपनी वो दूसरी होती है और वो किसके बिहाफ में कर रही है? दैट इज on behalf of someone else who is the sponsorer. Mass media, that is print media or electronic media or broadcast media. Identified sponsor means the owner, brand owner,
या उसकी तरफ से या रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हो रहा है। कंपनी खुद का एडवर्टीजमेंट कभी अगर छापना चाहेगी तो उसको एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी। ऑगिवली फॉर एग्जांपल, ऑगिवली इज डूइंग द नॉन पर्सनल प्रमोशन फॉर एयरटेल सिंस वेरी लॉन्ग। नाउ वन वे कम्युनिकेशन होता है, आपने टीवी पे ऐड देखा तो आप उससे बात नहीं कर सकते, आप केवल देख सकते हैं, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, there are four major classes of advertisements based on the criterias. First, on the basis of target audience, on the basis of geographical area. Third is on the basis of medium, and then on the basis of purpose. Here, advertisement can be classified by target audience, geographic area, medium, and purpose. You need to remember all these points. Number one, on the basis of target audience, we can classify the advertisement into two categories: consumer advertisements and business advertisements. Consumer advertisements, they are being targeted towards the people, those who are going to purchase the product for their personal consumption. Business advertisement aimed at the people who are purchasing the product for resale. These includes the industrial customers, trade customers, the trade partners, professionals, agricultural sector, etc. Now, on the basis of geographical area, the advertisement is classified into four categories: local advertisements, regional advertisements, national level advertisements, and international level advertisements. ओलंपिक का ऐड आ रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है, बट उस ओलंपिक की ऐड को आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं, राइट। कोलगेट ब्रांड वर्ल्ड वाइड कई सारी कंट्रीज में है, बट जिस कंट्री में जाता है उसका रीजन स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज में ऐड देता है। आप कोलगेट को कोरिया में जाके खरीदोगे तो कोरियन लैंग्वेज में आएगा, पेप्सी को कोरिया में खरीदोगे कोरियन लैंग्वेज में उसका पेप्सी का लिखा रहेगा, आप यहाँ पर खरीदोगे तो आपको इंग्लिश में दिखा रहेगा। सो हर कंट्री के हिसाब से एडवर्टीजमेंट देती कंपनीज। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का भी एडवर्टीजमेंट हो जाता है, लोकल लेवल का भी हो जाता है, रीजनल लेवल का भी हो जाता है। अभी लोकल लेवल पे आपने देखा, अगर कोई वड़ा पाव वाला है और वो पुणे में वड़ा पाव बेच रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट देना प्रेफर करेगा लोकल न्यूज़ चैनल्स में या लोकल केबल चैनल्स में। वो इंटरनेशनल लेवल पे ऐड क्यों देगा, जबकि उसको पता है कि वड़ा पाव वो वहीं पे लोग जो कस्टमर्स हैं वो उसके नज़दीक वाले ही हैं, वही आके खाएंगे। रीजनल लेवल पे अगर कॉटन की बात की जाए, यवतमाल में कॉटन प्रोड्यूस होता है, तो अगर उनको एडवर्टीजमेंट देना है कि इतनी क्वांटिटी ऑफ कॉटन को ऑक्शन करना है तो वो रीजनल लेवल पे जाएगा, राइट। उसके ऑक्शंस होते हैं, टेंडर्स निकाले जाते हैं। नेशनल लेवल पे आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, एक ब्रांड का एडवर्टीजमेंट, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, पार्ले, मोनाको, पतंजलि ब्रांड, इनका नेशनल लेवल पे एडवर्टीजमेंट है। ब्रांड्स लाइक मारुति, हुंडई, होंडा, रेनो, इनके सब नेशनल लेवल के एडवर्टीजमेंट्स है जो एक कॉमन इनकी इमेज रहती है। हर किसी जगह पे आप जाओ, आप देखोगे कि एक कॉमन एडवर्टीजमेंट है, देन उसको फिर रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। सो ये जोग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट है। किसी को कोई डाउट्स या कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर, ऑल क्लियर सर। नो सर। ओके। मीडियम के बेसिस पे देखा जाए तो देर आर टू मेजर मीडियम्स, दैट इज प्रिंट and broadcast, that is also called as the electronic advertisements. Print media includes newspaper, magazine, then outdoor transit advertisement sent through the emails, right? ये print advertisements है। then broadcast में आता है आपका रेडियो, टेलीविजन, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। उसके बाद कई आजकल वीडियोस भी कंपनीज लॉन्च करती हैं और उसको वायरल कर देती हैं। वायरल करने के पीछे का मकसद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल झंडू बाम करके वो जो गाना आया था अपना, झंडू बाम ब्रांड के ऊपर था, तो ये जो झंडू बाम था इसने सलमान खान और मलाइका अरोड़ा के ऊपर केस कर दिया था। उसके बाद इन लोगों ने उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट शूट करने का प्रॉमिस किया, और जब वो वीडियो शूट किया तो उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट भी उसी को ही दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आजकल कुछ वीडियोस इसलिए भी बनाए जाते हैं कि उसको वायरल कर दो तो लोगों के दिमाग में वो ब्रांड की एक इमेज आ जाएगी। द पीपल गेट दैट पर्टिकुलर image of the brand somewhere backside of their mind subconsciously, and it will come into play whenever they will take the purchase decision related to that product category. Now talking about the purpose, every brand, every organization has their purpose, based on which the advertisements are also been classified into product advertising, non-product advertising, and commercial advertising.
Product advertisings are always aimed to promote their products and services in the product line, and then the company wants to promote the sales. For example, Apple अगर Apple 12 का ऐड दे रहा है तो that is called as Apple's product advertising, जिसमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिखा रहा है. Then we have non-product or the corporate or institutional advertising that is intended to promote the firm's mission or the philosophy rather than a product. आपने मारुति सुजुकी का ऐड देखा होगा, काउंट ऑन अस. मारुति का लोगो, पीछे मारुति की सारी गाड़ियों की इमेज और उसके बाद काउंट ऑन अस. So that is a kind of corporate or institutional advertisement. Bajaj Electricals, they never give the advertisement for their one particular product category. Sysca, they never give the advertisement for one product category. Rather than they give the advertisement for their entire product line and the product width. Then commercial advertising, that is intended to promote the goods, services or the ideas with the expectancy of making a profit. Buy one get 10% off, buy two get 25% off. ठीक है. ये सारी चीज़ें. देन रिजॉर्ट्स में ऑफ सीजन सेल्स चलती रहती है. उसके बाद होटल्स में आपने देखा होगा आजकल, अगर आप 3-4 बजे तक अगर आप वहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो कुछ होटल्स में आपको डिस्काउंट है. जोमेटो में हर वेडनेसडे आपको अप टू 60% ऑफ मिलता है. कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, सबवे है, बर्गर किंग है, मैकडी है. आप कभी भी जाके देखिए, वहाँ पे उनके कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते हैं वीकडेज के लिए, क्योंकि वीकडेज में क्राउड कम रहती है. उसको प्रमोट करने के लिए वो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स देते हैं कि इस पीरियड में अगर आप आए तो आपको ये. कुछ कंपनीज में कुछ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में अगर आप दोपहर के टाइम पे जाते हैं बुफे के लिए या लंच के लिए, तो वहाँ पर आपको मॉकटेल या कॉकटेल फ्री रहता है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स का पार्ट है. क्यों करना चाहती कंपनी? जस्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स. इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So as I have explained you about all the categories now, अभी नॉन कमर्शियल आपको पता चल गया. इट इज स्पॉन्सर्ड बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सिविक ग्रुप, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस. किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया. एक्शन एडवर्टाइजिंग क्या होता है? इट इज इंटेंडेड टू ब्रिंग आउट द इमीडिएट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर. कई बार कुछ कंपनीज अपना एक एडवर्टीजमेंट देती हैं. वो एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है कि इमीडिएटली आप उसमें सावधान हो जाएं या आप इमीडिएटली एक्शन ले. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पूना गाडगिल, लास्ट ईयर की बात है. पूना गाडगिल के कुछ ब्रांचेस में बैंक्रप्सी की वजह से उनके, बिकॉज ये फैमिली बिजनेस है उनका, तो बैंक्रप्सी की वजह से कुछ चेन्स बंद होने वाली थी. उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया कि जिसका जिसका जो पैसा बाकी है बैंक में आए, वो पैसा क्लेम करे और ले जाए. उन्होंने लास्ट ईयर 30 अप्रैल तक का टाइम दिया था. उसके बाद वो बोल रहे थे कि इसके बाद अगर कोई क्लेम करता है तो उसको लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही क्लेम सेटलमेंट होगा. कई बार गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट देती है. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई. ठीक है. अभी ये क्या है, लोगों को पता चल गया आधार और पैन कार्ड लिंक करने की डेट 31 अगस्त. तो ये क्या है, लोगों को पता चल गया कि इस टाइम पीरियड तक ही आपको काम करना है. जीएसटी फाइलिंग की डेट, ये सब क्या होता है, ये एक्शन एडवर्टीजमेंट्स का पार्ट होता है, जिसको पढ़ने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग एक्शन लेंगे. अभी आपने देखा होगा गाड़ियों में, अभी आप अगर कहीं टोल प्लाजा में जाते हैं तो अभी आपको टोल प्लाजा पे कैश पे करना अलाउ नहीं है. आपके पास में एक छोटा सा बारकोड स्टिकर होता है. कोई मुझे बताएगा उसे क्या बोलते हैं? फास्टैग. यस, वेरी गुड. इट इज कॉल्ड एज अ फास्टैग. तो वो फास्टैग आप किसी भी बैंक से डायरेक्टली ले सकते हैं. यूपीआई पेमेंट ऐप के थ्रू भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं. उसको टॉपअप करिए और वो अपनी गाड़ी में लगा दीजिए, 4 व्हीलर में. जब आप कभी भी उस रूट से निकलेंगे जहाँ पर टोल प्लाजा है, और अगर वो आप एलिजिबल हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बारकोड स्कैनर स्कैन करेगा और उतना अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा. बट इसमें भी एक ड्रॉबैक ये है कि लोकल लोगों की भी गाड़ी से टोल कटता है. जो लोग लोकल लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है. तो कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी. तो यहाँ पर क्या है, एक्शन एडवर्टीजमेंट था. पोलियो ड्रॉप के लिए डेट्स निकाल दी, एडवर्टीजमेंट दे देती है गवर्नमेंट. उसके बाद लोग वो फॉलो करने लग जाते हैं. तो ये एक्शन एडवर्टाइजमेंट्स हैं. एक्शन एडवर्टीजमेंट लाइक डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, राइट.
उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बैंक्स के एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं। ये लोग जब इमीडिएट एक्शन लेने लग जाएं किसी चीज को पढ़ने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन एडवर्टीजमेंट। अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट दे आर इंटेंडेड टू बिल्ड एन इमेज एंड क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड। कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता तो अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट्स, ये प्रोडक्ट है कैसा, इसका क्लास क्या है। अभी फॉर एग्जांपल एलईडी टीवी कुछ सॉरी एलईडी लाइट्स, कुछ स्मार्ट एलईडी लाइट्स मार्केट में आ गई हैं जो आप किसी भी सरफेस पे चिपका सकते हैं और वो जलेंगी। चले गए वो दिन जब आपको उसको एलईडी को लगा, एलईडी बल्ब को या एलईडी लाइट्स को लगाने के लिए एक सॉकेट की जरूरत होती थी। अब सॉकेट की जरूरत नहीं है, अब आपको केवल एक आपके घर में मिरर है, वॉल है, उसमें चिपका दीजिए और वो लाइट जलने लग जाएगी। सो ये सारी टेक्नोलॉजी, और वो वायरलेस चार्जिंग पे काम करती है। एक बार वायरलेस चार्ज कर दिया उसके बाद आप कहीं पर भी उसको लगा दें। तो ये अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है, जो काफी इनोवेटिव है, जो अपनी जनरेशन से आगे हैं। राइट, shall I go ahead now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So major advertisements, as I said, institutional advertising and product advertising. Institutional advertisements are done for the B2B marketing that enhances the corporate's identity. It supports the advocacy for the brands. Product advertisements are related to the pioneer products or indicating or reflecting an image in the market that we are the pioneer in the market in terms of this technology. Then to remain competitive and to help the customers to compare the products, the product advertisement is done. आज आप Amazon पे जाइए, आप कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में सेलेक्ट करिए और आप उसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे Amazon में या फ्लिपकार्ट में, तो आपके पास ऑप्शन आता है कंपेयर करने का। तो आप उस रेट से ज़्यादा उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल राउटर, आप एक राउटर सर्च मारिए, राउटर में आपको दिखेगा 800-900 रुपए से चालू होके 2-3 लाख रुपए तक के राउटर हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट कैटेगरी चूज की कि एक 20,000 रुपए तक का राउटर लेना है, आप देखेंगे कि नीचे कंपैरिजन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर 20,000 का राउटर है, ये 15,000 का है, ये 25,000 का है, ये अलग अलग कंपनीज का है, ये सेम कंपनी का है, इसका क्या कंपैरिजन है। तो ये प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू पॉसिबल होता है। अभी आपको शायद पता होगा ये रिकेट बेनकिसर कंपनी का जो टॉयलेट क्लीनर है और अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो टॉयलेट क्लीनर है, इनके बीच में एक एड वॉर चालू हुआ है, पता है आपको? ये पता है आपको कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, वो एक मिस्टर करके एक प्रोडक्ट है और ये हार्पिक का एक। ओके, डोमेक्स जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, उसने अपने एडवर्टीजमेंट में रैकेट बेनकिसर का जो प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है, हार्पिक, उसके बारे में क्लियरली दिखाया है कि इनका जो है इसमें जो स्मेल है वो ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है एज कम्पेयर टू हार्पिक, जो एक्चुअली अलाउड नहीं होता, बट उन्होंने कंपैरिजन में डायरेक्टली ब्रांड का नाम ले लिया। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर दे हैड चैलेंज्ड द रैकेट बेनकिसर इन द न्यू कैंपेन फॉर द डोमेक्स ब्रांड। यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको नेट पे मिलेंगी, आप उसको केवल एक क्लिक करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। सर ये लेकिन लीगली अलाउड होता है क्या किसी ब्रांड का नाम लेना, जैसे डाबर ने पैराशूट कर लिया था? नहीं, अलाउड नहीं होता, बट कई बार क्या होता है कि लूप होल्स का यूज करके कंपनी के पास में कुछ फाइंडिंग्स है, जैसे सफोला कंपनी मैरिको इंडस्ट्रीज की, इसने अपना हनी ब्रांड लॉन्च करने से पहले दूसरे कंपनी का हनी को टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। अब लोगों को बता दिया कि इसमें बाकी जितने भी ब्रांड्स मार्केट में, झंडू का हो या पतंजलि हो या वैद्यनाथ हो या उसके बाद XYZ हिमालय का ब्रांड हो, हर किसी ब्रांड पे एडल्ट्रेशन है। और इसको दिखाने के बाद उसने अपने ब्रांड का जो टेस्टिंग करवाई उसको दिखा दिया, इससे लोगों के दिमाग में ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश की। आपको मैं बता दूं आज की तारीख में सफोला सबसे ये तो बदनामी है ना सर, लेकिन बदनामी है, बट कंपनीज कई बार अपने फायदे के लिए यूज करती हैं। वो कह रही हैं कि हम कुछ गलत इमेज नहीं दिखा रहे, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है हम उसको ही दिखा रहे हैं, हमने इसको टेस्ट किया है। और लीगली अगर आपने कोई चीज को टेस्ट किया, आप किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते। जब यहाँ पर लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, तो ये सब सिर्फ एक ब्रांड है, राइट? यस सर, यस सर। Shall we go ahead now? Yes, sir.
सेल्स प्रमोशन क्या होता है? It involves the use of media and non-media marketing pressure applied for the predetermined or the limited period of time at the level of the consumers, the retailers, wholesaler in order to stimulate the trial, increase the customer demand और improve the product availability. सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया कि कई बार एक मार्केट में एक स्लो डाउन आ जाता है. जब स्लो डाउन आ जाता है तो कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी है, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है? डिस्काउंट, ऑफर, कूपन्स, ये सारी चीज़ें लेके आती हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जिससे कि कस्टमर्स जो हैं वो आए, फुटफॉल बढ़े, सेल बढ़े और इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है. ऑफ सीजन सेल एग्जांपल है इसका. देन पब्लिक रिलेशंस क्या है? इट्स अ यूनिक मैनेजमेंट फंक्शन विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश and maintain the mutual lines of communication, understanding, acceptance and cooperation with their public. पब्लिक के साथ में रिलेशन बनाना ही पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू कीप इन्फॉर्म एंड ऑन द रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक ओपिनियन. यहाँ पर पब्लिक की क्या ओपिनियन आपके ब्रांड को लेके, ये पीआरओ बताता है कंपनी को कि पब्लिक क्या सोचती है. पब्लिक में कौन आता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, लेबर यूनियंस, एम्प्लॉयज, सभी कोई. तो यहाँ पर आपको इनके साथ में कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करना है. बाहर की दुनिया को तो बताना है कि आप क्या हो, अंदर के लोगों में भी ट्रस्ट जगाना है. जब तक खुद के लोग अपने ब्रांड में ट्रस्ट नहीं रखेंगे तब तक आपका ब्रांड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. तो अगर आप कल को एक मिठाई की भी दुकान खोल रहे हो तो सबसे पहले अपने यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के दिमाग में इतना ट्रस्ट क्रिएट करो कि वो आपके ब्रांड में ट्रस्ट करें. जब वो ट्रस्ट करेंगे तब वो दूसरों को रिकमेंड जब करेंगे ना प्रोडक्ट को, तो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं भी किया तो भी आपका ब्रांड चलेगा. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I have now 5 minutes remaining with me. So in this last 5 minutes, I cannot cover up the new topic. So I request you to just read the examples of sales promotion. The examples are coupons, price of deals, premiums, contest, samples and trials, phone gift cards, rebates, frequency programs, event sponsorship, etc. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे. Any question? सर जो अभी पेटीएम वगैरह रहते हैं उसमें जो कूपन आते हैं वो भी सेल प्रमोशन ही होगा? Yes, it's a kind of promotion only. Yes. Okay. So shall we close and shall we conclude the session for today? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Have sir. a nice day. Same to you. Bye bye.